ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معیشت کی دنیا کا ایک معتبر نام، ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ میں اسٹریٹ اوے ایک خبر کی طرف آتا ہوں جس نے خاصا پریشانی پیدا کر دی ہے۔ ایک دو دن پہلے ایک بڑے قومی اردو اخبار میں خبر چھپی جس میں ہمارے وزیر خزانہ فرما رہے تھے کہ ہمارے دوست ملکوں نے جو قرضے کی واپسی کی میعاد کی مدت ہے اس میں اضافہ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، یا وہ رول اوور جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ اگر سچویشن ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن شاید کل پہنچ رہا ہے پاکستان، یہ بالکل جسے کہتے ہیں یہ خیال تھا کہ شاید اگلے سال مارچ کے مہینے میں ریویو ہوگا، مگر یہ جو آئے ہیں تقریباً 4.5 مہینے پہلے، اس سے ایک بہت بڑا پریشانی کا اشارہ ملتا ہے، اور وہ اشارہ وہی ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قرضوں کی واپسی کی رفتار جو ہم کم کروانا چاہ رہے تھے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کون سا ملک ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ قرضے ملے ہیں، وہ رفتاری میں کمی شاید ابھی تک اگریمنٹ ہو نہیں پایا ہے، اور جو پاکستان کے سال بھر کے جو پیسوں کی ضرورت ہے باہر سے تقریباً 24 ارب بلین ڈالرز، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ اس لیے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن دھڑا دھڑ پاکستان پہنچ رہا ہے، اور شاید یہی ایشو سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایشو یعنی ظاہر ہے کوئی اس کا ہم حل تو تلاش کریں گے، لیکن اس کے اثرات کبھی ہم کہتے ہیں جی وہ ایک منی بجٹ آ جائے گا، ٹیکسیشن، وہی انہی کو نچوڑیں گے ہم عوام کو، یا ڈو وی ہیو اینی ادر آپشنز ایٹ آر ڈسپوزل؟ ڈاکٹر صاحب، دراصل اس کا تعلق ٹیکسیشن سے نہیں ہے، اگرچہ خیال یہ تھا کہ ایف ڈی آر کے ریونیوز میں نمایاں طور پر شارٹ فال ہوا ہے، تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 400 ارب تک کا شارٹ فال ہو چکا ہے۔ وہ یہ رہا ہے، اور یہ مسئلہ جب سری لنکا ڈیفالٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2 سے 2.5 سال پہلے، اس وقت بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ڈیلے اس لیے ہوا تھا کہ جو ملک چاہے سری لنکا کو لونز دیے تھے وہ رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں پھر سے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا ملک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو ظاہر ہے آپ نام نہیں لے رہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اور ہمیں امید بھی انہی سے تھی، اور ہماری روایتی طور پر یعنی جو ایک رشتے ہیں وہ بھی بڑے مستحکم تھے۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری ہیوج فیلیور، ایک ڈپلومیٹک لیول پہ بھی اور اکنامک لیول پہ بھی؟ وی آر لوزنگ آر فرینڈس۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب تو نام لینا ہی ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا قرض دینے والا ملک چائنا ہے، اور چائنا سے ہم نے سی پیک میں چائنا کے کمرشل بینکوں سے اور چائنا کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے، خاص طور پہ آئی پی پیز میں جو پیسہ لگا ہے، یہ سب آپ ملا لیں تو یہ 38 سے 40 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ تقریباً 25% سے بھی بہت زیادہ ہے، 30% کے لگ بھگ ہو چکا ہے ہمارے پورا ڈیٹ کا۔ اور اگرچہ ہمیں چائنیز لونز پہ رول اوور نہیں ملتا ہے یا کم ملتا ہے، تو ہماری فائنینسنگ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ نئے پیسے جو ہیں پاکستان کو نئے لونز نہیں مل رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر جو انٹرنیشنل ہے اس نے پاکستان کو لونز دینا ختم کر دیا ہے، اس لیے ہمارے پاشا صاحب ایک طرف تو ہمیں عالمی جو ادارے ہیں وہ رول اوور نہیں کر رہے ہمارا قرضہ، دوسری جانب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں آ چکا ہے، انہوں نے اپنی تعارفی میٹنگ بھی کر لی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہدف ٹیکسوں کا وصولی کا ٹیکسوں کا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منی بجٹ جو ہے وہ آئے گا اور مہنگائی کا طوفان مزید آئے گا؟
جی मिनी बजट तो इसलिए लाना ज़रूरी है कि साल भर में जो कमिटमेंट FBR ने किया है कि 40% माशाल्लाह रेवेन्यूज़ में इजाफा करेंगे और 9,300 अरब से बढ़ाकर तकरीबन 13,000 अरब तक ले जाएंगे। ये एक बेपनाह एम्बिशियस टारगेट था। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये फीजिबल नहीं है। और अब पोजीशन ये है कि पहले 4 महीने में 40% जो टारगेट ग्रोथ है उसके बरक्स सिर्फ 25% ग्रोथ हुई है। 15% शॉर्टफॉल हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार यानी सर 192 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो 500 अरब रुपए के कहा जा रहा है कि नए जो टैक्स लगेंगे, तो 500 अरब रुपए के टैक्स जो वसूल किए जाएंगे वो तो आम आवाम से वसूल किए जाएंगे। कैलकुलेशन से बता रहे हैं अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी है। नहीं, FBR के कैलकुलेशंस गलत हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी गुजरी है इन चीज़ों में। शॉर्टफॉल ज़्यादा है, कम बताया जा रहा है। 400 अरब तक हो चुका है और ख़तरा ये कि 1000 अरब से भी ज़्यादा साल के एंड तक हो जाए। और मैंने तो मजाक में टीवी प्रोग्राम में ये भी कहा है, आप मुझे बात करने दें जी प्लीज़, कि मिनी बजट के बजाय अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैक्सी बजट लाना पड़ेगा। समझ गए आप इशारा? नहीं सर, जरा प्लीज एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। बहुत बड़ा मिनी बजट लाना पड़ेगा साल भर का रेवेन्यू लॉस को पूरा करने के लिए। और दूसरी तरफ 2 चीज़ें बड़ी परेशान कुन हो चुकी हैं। एक तो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत साल का टारगेट था 50 अरब, तकरीबन ना होने के बराबर हुआ है। बिल्कुल फेल हो गया FBR ताजरों को टैक्स नेट में लाने से। दूसरी तरफ अक्टूबर के आगाज़ से जनवरी के बिगनिंग में ये एग्रीमेंट था कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स 4 प्रोविंसेस में नुमाया तौर पर आ जाएगा और उसका जो टैक्स रेट होगा वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जितना ही होगा। अभी तक कोई एक प्रोविंस ने तैयारी नहीं की है और इसके इम्कानात बहुत हाई हैं कि जनवरी के बिगनिंग में 4 प्रोविंसेस लेजिस्लेशन नहीं लाएंगे और इससे एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल होगा हमारा IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया में। तो लिहाजा इस वक्त फिस्कल साइड पे परेशान कुन हालात हैं, मगर मैं फिर से कहूँगा कि ये वो मार्च तक इंतज़ार कर लेते। इंतज़ार ना करने की वजह शॉर्टफॉल है आपके रोल ओवर्स ऑफ एक्सटर्नल डेट में। और सर जो आप कह रहे हैं बड़ा मिनी बजट आएगा तो उसमें क्या क्या होगा? क्या टैक्सेस नए लगेंगे? टैक्सेस की शरह बढ़ाई जाएगी? क्या होगा सर उसमें? बात दरअसल ये है कि आपको कोशिश तो करना चाहिए कि नए रास्ते ढूंढें। और सबसे बड़ा गैप जो इस वक्त पाकिस्तान में रह गया है एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा, वो तो होलसेल और रिटेल ट्रेड था, वहाँ आप फेल हो गए। अब एक ही सेक्टर रह गया है जिस पर भारी टैक्सेशन की ज़रूरत है। इस वक्त वो सेक्टर बूम कर रहा है। हैरत अंगेज बात यह है, और आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा ये कौन सा सेक्टर है। ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर है। इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में 5 टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी पर, और माशाल्लाह कुल रेवेन्यू जो हम उठा रहे हैं वो सिर्फ GDP का 0.2%, जबकि ये कम से कम 1.5 से 2% होना चाहिए। इस पे गुंजाइश है, लगाएं, जोर से लगाएं बड़े प्रॉपर्टीज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की साइड भी है, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमाजियत शख्सियत हैं। जब आप मैक्सी बजट कहते हैं और इससे पहले जो फिगर्स आप पावर्टी के दे चुके हैं कि कितनी तेजी से लोग पावर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं, यूथ कहाँ खड़ी है, व्हाट कुड बी द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस मैक्सी बजट सो टू से? खुदा न खास्ता देखिए, अगर आम चीज़ों पर आप लगाएंगे, खाने पीने के अशिया पे लगाएंगे, पेट्रोल पे लगाएंगे, इस तरह की चीज़ों पर आप लगाएंगे, कुछ बेसिक इंपोर्ट्स पे भी लगाएंगे, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अवाम जो हैं बेचारे पिस चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग 24 करोड़ में से गरीब हो चुके हैं। और क्या आप
गुर्बत और बढ़ाना चाहेंगे, तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि एक मसला खड़ा हो जाए हमारे मुल्क। तो वाहिद आप सर, एक तरफ तो ये गुर्बत का मसला है, दूसरी जानब ये भी खदशा तो है ना सर कि पहली तिमाही में ही हम नाकाम हो गए हैं और 37 माह का बजट जो प्रोग्राम है IMF का वही ना हो, वही जो है वो ड्रॉप आउट हो जाए। देखिए, अगर वो जिस तरह पिछला EFF हुआ था नाकामयाब, अगर इस मर्तबा होता है तो मुझे ये कहते हुए इंतहा परेशानी और अफसोस है कि पाकिस्तान को दिवालिये से निकलने में बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये हम देख चुके हैं श्रीलंका में जो अवाम के साथ हुआ या और जगहों पे हुआ, तो क्या इसकी पेशबंदी, कोई रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स, यू सी दे आर सीरियस, या उन्हें अंदाज़ा भी है वो, और आप कह रहे हैं कि वो फिगर फजिंग कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अफरात ज़र की रफ्तार जो कह रहे हैं कि 7% पर गिर चुकी है, बड़े अफसोस से हम सब की ज़िंदगी गुजरी है। पिछले 35 साल से हम पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अर्सा हुकूमत में भी रहे। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, जो असल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, और वो वाज़े तौर पर अभी भी बढ़ रहा है और 12 से 13% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और पिछले 2 लेकिन सर, हुकूमत क्यों ये दावा कर रही है कि जो महंगाई की रफ्तार है वो कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, सिंगल डिजिट पे आ गई है, हम जो है मुस्तहकम हो गए हैं? फिर हुकूमत के दावे कहाँ पे हैं? क्या हुकूमत जो है वो गलत बयानी कर रही है? हुकूमत माशाल्लाह नहीं शायद कर रही है, मगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो माशाल्लाह बड़ी खूबी से इन्फ्लेशन रेट बता रहा है।